अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप लोग हमारा शो दो मस्ताने देख रहे हैं। आज वो क्या हुआ भाई? आज यार आप बताएं कि क्या हुआ। क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है और गलती पाकिस्तान से। जो है बहुत अच्छा खेल रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेल रहा है। बहुत सही जा रहे हैं। लेकिन उस पर तबसरा करने से पहले हम इतना बता दें कि ये शो जो है सिने ड्रीम्स ने स्पॉन्सर किया है। सिने ड्रीम्स मीडिया कंपनी लिमिटेड। जब जहां लिमिटेड की बात हो रही है, हाँ, let's talk about the limited capabilities of the Pakistani batting and bowling। और फील्डिंग में तो खैर वो हमारा कुछ अकाउंट है ही नहीं, जीरो रहता है। फील्डिंग देयर सीम टू बी इनविजिबल फील्डर्स इन द फील्ड समटाइम्स यस आई थिंक। यार, आप चाहे जैसे भी मूड में हो, आई एम वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ये जो पाकिस्तान का हशर निकला हुआ है इस टूर्नामेंट में, यार इनको किसने कहा था कि इस टूर्नामेंट में आप दाखला भी लीजिए? Do you honestly think that Pakistan deserves a spot in the top 8 at this point? Listen, I'm going to play devil's advocate for a You second. play whatever advocate you have to. Answer me this. क्या पाकिस्तान टॉप 8 में जो फिलहाल कारकर्दगी है डिजर्व करता है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। Based on what you're going to ask, मैं तुम्हें बताता हूँ। But before we do that, let me just clarify for our audience. We are recording this show on Tuesday. Pakistan barely beat Canada today. They did what they had to do. And by the time we are on air, Pakistan would have lost to Ireland. Wow. Okay. Well, I don't know how to respond to that. Because you can't. I will tell you that, look, every single Pakistani outlet right now, every single YouTuber, every single blogger, all you hear is, bhai, sharamnak performance, sharamnak performance. Bhai, sharam karo, sharam karo, sharam karo. ये बड़ा पहले ये पॉपुलर बहुत था ये, लेकिन अब ये पुराना होने लगा है। अच्छा नहीं, चलिए let's do a quick analysis of the Pakistani बैटिंग और बॉलिंग, पूरी टीम का आप बात करते हैं, शुरू ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है। मैं शुरू करूंगा ओपनर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आंसर मी दिस। फखर जमान, जिसने सिंगल हैंडेडली चैंपियंस ट्रॉफी में चंद साल पहले इंडिया को सिंगल हैंडेडली हराया था, उस बंदे ने सेंचुरी एंड हाफ, and he played the entire 50 over innings. Yes, he did. उस बंदे को आपने, why did he not open against India in such a crunch game? I think last Sunday. Because some people in power knew that he was an Army Navy guy, so they didn't want him in there, अच्छा, ये आपका एक्सप्लेनेशन है? नहीं, मैं बताता हूँ जी। मसला ये यार, ये हमारे बेचारे, ये हमारे प्लेयर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम ना डालो, क्योंकि ये मसला जो है ये उनसे ऊपर है। ये ठीक है ना, इनकी जिम्मेदारी नहीं है मैनेजिंग द टीम, मेकिंग द टीम, रिक्रूटिंग द टीम एंड असेसिंग द टीम। ये इनका काम नहीं है। इनका काम है खेलना to the best of their qualities or their capabilities. Okay. I accept that. So according to the capabilities of the batting side and the bowling side, especially the bowling side, I'm going to talk about the bowling side first. They did their job. I'm not going to sit here and do rah-rah and have pom-poms in my hands and say, oh, fantastic. They did their job by taking wickets at a very consistent pace and by a very strong Indian batting side. And they did the same thing with Canada this time. You know what the score was in the USA game, what the target was. It was a very low target. Lekin it came down to the last over where they had 13, I think it was like 13 runs on 2 balls left. Why so they did their job in that respect. अब ये ठहर रहे यार, एक सेकंड खत्म करें। नहीं मैं देखो, तुमने ये बात रेज की है ना, मैं और तुम बड़ी जोश में आ गए हो ना, बहुत रेज करोगे, तुम जोश में आ गए हो, लेकिन I'm just stressing facts. They did a wonderful job in the field. They've done a wonderful job in the bowling. It's not up to them to assess and then recruit and then dismiss their batting lineup. That's not their job. Acha. So the job of the batters is to
to slow down the over rate, to score at a leisurely rate of 3 runs per over in a T20 game. Yeah. And also they don't have the marbles to assess कि भाई अगर सामने आपके बुमराह बॉलिंग कर रहा है इस वक्त और उसका ओवर आपको सिर्फ 6 बॉलें आपको निकालनी है डिफेंड करके, क्योंकि अगला ओवर जब वो अर्शदीप या फिर पांड्या कराएगा तो आप फ्रीली खेल सकते हैं। तो आपने लेकिन आप फैसला करते हैं कि नहीं, मैं मोहम्मद रिजवान हूं, तो मैं जो हूं इस बुमराह को दिखाता हूं कि मैं इसकी बॉलिंग पे कैसे छक्का मारूं। अच्छा, आप क्या रिजवान की और उसने उसके छक्के छोड़ा दिए। अच्छा, आप क्या रिजवान के जहन में थे? वर यू सिटिंग इनसाइड हिज ब्रेन? रिजवान का एक तो जहन ही नहीं है, जहन की हम बात नहीं करेंगे वो क्योंकि वहां पे पता नहीं कुछ है भी कि नहीं। नहीं, देखो या ही बीन हिट द हेड सो मेनी टाइम्स, चोटें बहुत लगती हैं, उसकी हाथ बहुत हिलते हैं, हाथों पे इट्स लाइक यू नो समथिंग्स ऑलवेज, हाथ कंट्रोल नहीं कर पाता, फिट्स मतलब कुछ मसला हो जाता है उससे। He gets seizures out there on the pitch at times. But let's get serious for just a second. Yes. Did you ever stop to think that Rizwan himself, with his limited capability of thinking, don't you think he was thinking that, holy shit, there's nobody behind me and the guys in front of me just failed miserably. I have to try, like, we don't have much time left. There's not many overs left. There's not many balls left. There's not many deliveries left. I have to do something special, even though Bumrah's in front of me right now. I have to do something special to try to change the pace and to try to change the momentum of this game. Exactly. आपको स्पेशल करना था, मैं यही कह रहा हूं कि आपको स्पेशल करना है, लेकिन आपने सबसे स्पेशल बॉलर के खिलाफ क्यों करना था? तो ठीक यार, इंडिया के सब जो है वो you pick up the 3 and 4 guys. Bumrah, sure, he's amazing, but maybe if I'm Rizwan, I'm thinking if I want to make a big daring shot, I'm going to make it against their best bowler, and I have no problem with that. Exactly. Well, and I have no problem with that. Your problem was that Pakistan lost the game. No, that's fine. Was the turning point of that entire game. Abdullah, they held a team. They held a powerhouse team like India. यार 119 मेरे ख्याल से 120 पे वो टारगेट था यार। कभी सोचा है कि 120 का टारगेट होगा या इंडिया के साथ? लेकिन मजे की बात आपको ये बताऊं कि इनिंग्स ब्रेक में इंडियंस इतने रिलैक्स थे कि उन्होंने भाई ये सोचा होगा कि यार अगर हम 119 में ढेर हो सकते हैं तो ये बेचारे तो अगर 100 भी कर गए, which and they actually beat India's expectations. इंडिया ने कहा होगा यार हमें तो 100 से अंदर करना था इनको ढेर, ये कैसे 113 रन कर गए? देखो यार, वो शायद रिजवान की ब्रिलियंस थी जो 113 पे ले गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो he stayed there the longest. I mean look, did Babar do anything? Did Babar do anything special? नहीं, देखिए बाबर की तो बात ही ना करें ना। हाँ तो ठीक है ना, तो बाबर के बारे में तो मैंने इस टूर्नामेंट से पहले ही कह दिया था कि भाई आपको कैप्टेंसी का सी तो चलन छोड़ें, लेकिन कैप्टेंसी को उर्दू में कैसे काफ से लिखते हैं, काफ भी नहीं आता भाई। पहले आप थोड़ा सा यार, दिस इज माय रिक्वेस्ट, जब इंटरव्यू में जाए खुदा के लिए, PCB, इट टेक्स a week's worth of training on to teach someone how to talk. इंग्लिश नहीं, उर्दू भाई। तू पंजाबी में गल कर ले यार, तू जिन्नी आंदी है, मैनू नहीं आंदी, लेकिन तू जितनी आंदी है कर ले सही से यार। लफ्ज तो आपके क्लियर हो ना, वो क्या कह जाता है क्या नहीं कहता, शायद वो ड्रेसिंग रूम में भी यही होता, वो खुद नहीं, उसको नहीं पता कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा यार, उसके टीममेट्स को नहीं पता। ये मसला क्यों, मिसकम्युनिकेशन क्यों हो रही है फील्ड में, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है किसी को कि क्या कह रहा है भाई। वो सब कह रहे हैं भाई ये बाबर भाई क्या कह रहे हैं यार। ये उसने कहा होगा रिजवान से भाई और उसने कहा नहीं आखिरी बॉल पे बुमराह की मारना है और उसने उठा दिया। यार तुमने तो मुझे यही कहा था करने के लिए, रिजवान कह रहा है बेचारा यार तुमने तो मेरे को बोला था ऐसे शॉट मारो बुमराह के खिलाफ। So, you know, what do you want, man? Abdullah, come on. Bharal, you know, we could sit here all day. Practically, हम 10 एपिसोड रिकॉर्ड कर सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के गेम पे। लेकिन in spite of all of this, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से ये दावा किया था कि पाकिस्तान is going to lose to England, नहीं US, अमेरिका, और वो हार गया। और मैंने ये भी कहा था कि इंडिया से जीत जाएगा। मेरी बात गलत हो गई। बहरहाल पहली दफा नहीं, मैं दूसरा दावा आपसे करने जा रहा हूं आज। अल्लाह माफी, जितना मैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं ये दावा करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान जो है सुपर 8 में आएगा। वाह भाई, पाकिस्तान जो है सुपर 8 में आएगा। लेकिन आप ऑनेस्टली, आप फुल सच्चाई और ठंडे दिमाग और एक, मेरा दिमाग तो ऐसा ठंडा बर्फ हो चुका है कि मतलब ठंडे दिमाग और भरपूर दिल से मुझे ये बताइए कि do they deserve a place in the top 8? Do you want me to tell you the honest truth?
Yes. Cricket is a weird, crazy game with crazy chances that can occur in all kinds of matches. Strange things happen in cricket. If you look at the body of work of Pakistan in international tournaments, they have done a wonderful job. They've either come to very close to the elimination rounds or they're in the elimination rounds. Well, they were the runners up in the last. The runners up. Hey, you're making my case for me. इतना तो देना ही होगा. So, yes. They're a deserve it? name country. They're a deserving country. They're a name country. They're one of the powerhouse countries of the world. They deserve to be there just on mere credit and on mere rep alone. They deserve to be there. And I'll tell you something. I'll tell you something else, Abdullah. Please, आप सुनिए इनकी बातें. फिर मैं बताऊंगा. ये don't look at the lineup or the batting side or the bowling or fielding side or who they are bringing in. हाँ. Look beyond that, folks. Look beyond that. Look at the PCB. Look at the recruiters and the assessors. Look at the scouts. Look at the people who have constructed this team. तो क्या उनको सलाम भेजें या उनसे आदाब करें, हाथ मिलाएं, क्या करना है उनके साथ? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उनके साथ. सलाम ना भेजें, गालियां भेजें, बददुआएं दें, मैं अभी खत में डाल जूते फेंकें, चप्पलें मारें, टमाटर फेंकें, जो भी कूड़ा जो है ना सामने जो कुछ भी नजर आए उनके ऊपर वो फेंकें आप. क्योंकि अगर पाकिस्तान की अगर ये हालत जो है ना अभी ये प्लेयर ये बेचारे प्लेयर्स की वजह से नहीं हो रहा है. It all starts from up here. Whatever your personality is like up here, whatever the type of people you are up here, it's going to reflect on your lineup. खैर So don't blame Abdullah. I'm telling you the truth. नहीं मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जहाँ जब कोई चीज अब अगर आर्मी तो उसकी जो फाउंडेशन अब्दुल्ला अगर आर्मी जो है वो टीम को रिक्रूट कर रही है तो ये किसका कसूर है? हाँ नहीं वो असल में सारे जिम जो थे बुक हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इनको पहाड़ों पे भेजो, पहाड़ चढ़ेंगे तो सीखेंगे कि भाई चोटियों पे पहुंचकर कैसा लगता है. हाँ. और अब वो ऐसी चोटी पे खड़े हैं कि जहां जरा सा पैर हिला ना तो पूरी टीम गिर जाएगी. देखो अब्दुल्ला, उसके बावजूद मैं दावा कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है किसी और टीम का हक मार के, राइट दिस डाउन, किसी डिजर्विंग टीम का हक मार के पहुंच जाएगी. और फिर वही होगा कि नहीं सब गुनाह माफ, पीसीबी अच्छी है, आर्मी नेवी जो भी आप कह लें वो सब अच्छे हैं, उनकी ट्रेनिंग थी जो काम आई, उन्होंने सिखाया कि भाई आखिरी वक्त तक ऐसे ही चलेगा. इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना विशियस सर्कल. ये ऐसे ही होगा. मैं कोई डिफेंडिंग आई एम नॉट ऑन द डिफेंडिंग बोर्ड ऑफ द कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आई एम नॉट. लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट द अदर साइड टू दिस. I'm trying to understand just like everybody else. And what I'm trying to understand is what caused them to be this badly humiliated in the public eye and the international eye. And I don't think it's them alone. I think it's the people that brought them here. नहीं, I agree. लेकिन हर चीज देखें, हर चीज के पीछे जो हर कामयाबी और हर नाकामी के पीछे एक बहुत बड़ा वो खड़ा होता है, महाज खड़ा होता है, एक बहुत बड़ी टीम खड़ी होती है. चाहे वो मूवी हो, अगर मूवी फेल हो जाए तो पीछे प्रोडक्शन टीम थी, डायरेक्शन टीम थी, लेकिन लोग जो हैं ब्लेम करते हैं उसको एक्टर को. लेकिन ये गलत है यार. You have to look at what it's like. It could be life, it could be whatever you want to call it, but it's wrong. It's not factual. But it's small margins, especially when you're going to talk about yaar dostiyan between Rauf and between Babar bringing in a couple of his own guys. What do you expect? When inmates are running the asylum and they're allowed to, who's the Wazir Ala right now? Who's Mohsen Naqvi, man? You know, do you want me to open up my mouth or what? नहीं, उनका मुंह खुलवाना चाहिए और उसमें कुछ डाल देना चाहिए. कुछ डालना चाहिए. क्या डालना चाहिए? तुम जरा बताइए. Let's think of things that we can put in. रुई डाल देंगे हम उसमें. So listen, man, when you don't have any business in cricket, before it was Najam Sethi साहब, when you have no business in cricket नहीं खेली, वो क्रिकेट खिलवा रहे लोग. You know, listen, man, and whoever's getting angry and saying that we're gaddars and we're talking against our people and our boards, you even you know that's true. देखिए मैं और ये तो बहुत छोटे लोग हैं. इस वक्त बड़े प्लेयर जो पुराने पाकिस्तान के सुपरस्टार्स थे, वो इस वक्त कह रहे हैं कि इस वक्त पूरे एक इंटायर क्लीन अप की जरूरत है. Surgical. They really need that.
And based on that, I kind of hope that they don't make the Super 8, क्योंकि फिर वाकई वो घर जाएंगे और उनको क्लीन अप किया जाएगा. अगर if they make it to the top 8, कुछ भी नहीं होगा. Find form and somehow make it to the finals and then lose, फिर ये होगा कि यार देखो कहाँ से थे, कहाँ आ गए, और फिर भी फाइनल में एक दो इधर बॉलें. So Abdullah, you're saying that's probably the worst thing that can happen to them, if they win. Yeah, but then knowing Pakistan and knowing our luck, the way things work for Pakistan in international tournaments like this, this is how it always happens for us. Yeah. We have no business in there, and they're going to beat Ireland at the end, and they're going to beat them with a massive run total, and with losing no wickets, and somehow you're going to look at the stats and be like, wait a minute, Pakistan's qualified. खैर जब ये शो आप लोग देख रहे होंगे तो either people will be laughing at us or will be commending us कि भाई क्या बातें, क्या prediction कर गए दोनों. पाकिस्तान को इन्होंने सुपर 8 में डाल ही दिया. सुपर 8 में डाला ही नहीं. लेकिन उसके बावजूद we're still crapping on them. We're shitting on them just like everybody else is. But we're also saying they'll probably end up in the Super 8. बस फिर भी यार रऊफ एक बॉल करा देता यार, तू चौका क्यों पड़वा दिया यार आखिरी बॉल पे उसने. अभी तक मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं यार. क्या 13 रन्स बाकी, मेरे ख्याल से 13 रन्स थे, 3 बॉल बाकी रहे थे. आई थिंक इट वाज हाफ एन ओवर. चौका, no, just that one ball will haunt Rauf for the rest of his life. और वो जो पाकिस्तान इंडिया से सिर्फ एक छक्का और चाहिए था. या पर अब्दुल्ला यहाँ वाकई, लेकिन वो 11 छक्के जो बैठे हुए थे ना, लेकिन उनसे एक भी नहीं लगा. लेकिन at least in the first game, in that first match, they still had a super over, man. They still had a chance. वो क्या किया उन्होंने, हग गए उन्होंने सारों ने. They took a crap on a bed, man, in that super over. वो आपका मोहम्मद आमिर जिसकी आप तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो वाइड पे वाइड करा रहा है. नहीं, लेकिन वो वाइड इसलिए कर रहा था ना कि I mean he knew the pressure was on, man. Do you know why a bowler bowls a wide? क्या वजह होती है? He's scared. He is scared that the guy in front of me is going to hit me for a 6. यार आप USA की टीम के उस बंदे को करा रहे हो जो $250 कमाता है, and you make $250 just by bowling one ball in a tournament, and you're scared of him. You're going to bowl 3 wides. I think Abdullah, to a non-player. In fairness, and in defense of Mohammad Amir, I don't think that it was the fear that was the problem. I think it was the pitch. आपकी डिफेंस काम नहीं आएगी, उसकी डिफेंस तो कई साल पहले वो I think it was the pitch. I think it was the sunlight shining off of the wickets. He couldn't see properly. Yeah. Okay? There were a lot of issues. नहीं. रोज़े क़यामत वो फरिश्ते भी कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद आमिर को माफ कर देते हैं. ये इसने रिश्वत नहीं ली थी. नहीं. ये खराब बॉलिंग नहीं कराता था. इसको सीधा डालो इसको. और ये वैसे, और नहीं, ये बदसूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत आदमी है. इसके दांत जो हैं बिल्कुल सेट हैं. दांत वैसे अच्छे हैं. इसके दांत अच्छे हैं. Really? That one crooked teeth which makes him, like Tom Cruise. No, actually his teeth are awful, is what I was. पान ज़्यादा खाता होगा. नहीं, there's something wrong with his teeth. Anyways, ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का. हाँ. हम भी पान खाएंगे. हाँ, पान खाएंगे, और मैं भी अपने टूथ जो है ना वो चिप करूंगा उसको जाके. नस्वार खाएंगे बल्कि हम फिर. हाँ, नस्वार. आधी टीम तो वैसी भी खाती है. Well, this is true, man. More than आधी टीम, man. We'll take a break. We'll be back. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver.
Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंबर खान और मैं फिर से हाजिर हूं अपना ज़बरदस्त सेगमेंट लेके जिसका नाम है मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरे लास्ट सेगमेंट को लोगों ने बहुत पसंद किया, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने ये कहा कि इस किस्म की मुस्बित बातों को जो पाकिस्तान के बारे में हैं, जो पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हम मीडिया में बहुत सारी नेगेटिविटी देखते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जो सलाहियतें मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों में एबिलिटीज़ मौजूद हैं, उनके बारे में भी जिक्र करना चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। और सब ने बहुत सराहा और सब ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जहाँ पर हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रख सकें और दुनिया को अपनी मतलब पाकिस्तान में मौजूद खूबसूरती से, यहाँ की खूबियों से दुनिया को रोशनास करा सकें। तो इसी लिहाज से मैं आज भी आपके लिए पाकिस्तान के ही बारे में बहुत ही ज़बरदस्त सी बात लेकर आई हूँ। और इस बात के बारे में भी हर कोई जानता है, हर कोई इस चीज़ को पहचानता है और बल्कि पाकिस्तान को इसी के नाम से पहचाना जाता है। हमने बचपन में बहुत सुना K2 का पाकिस्तान, तो आपने ये स्लोगन तो सुना होगा, लेकिन K2 के बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि K2 जो है पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है, पाकिस्तान का एक अहम असासा है और पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरद रखता है। और K2 जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ के मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के तमाम कोहे पैमानों के लिए, माउंटेनियर्स के लिए एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है K2 में। यहाँ पे हर साल लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, K2 को सर करने की कोशिश करते हैं और इस सिलसिले में बहुत अरसे से काम हो रहा है और बहुत जो माउंटेनियर्स हैं वो K2 में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और K2 जो है वो पाकिस्तान को दुनिया में एक मुनफरद और एक अहम मकाम दिलाता है। तो मैं लेके आई हूँ K2 के बारे में चंद अहम मालूमात। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानते भी होंगे इस मालूमात के बारे में, तो उनकी जो है मेमोरी थोड़ी रिवाइव हो जाएगी, उनकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। और जो लोग नहीं जानते, जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो बच्चे हमारे यहाँ कनाडा में रहते हैं, उनको नहीं पता पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में कितनी जिनको एक्सप्लोर करने की और जिन पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन बच्चों के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल होना चाहिए और उन बच्चों को, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, बल्कि बताना भी चाहिए कि पाकिस्तान में किस किस्म की ऐसी मतलब अजूबात हैं, किस किस्म के ऐसे तारीख़ी मकामात हैं जो मैंने अपने लास्ट सेगमेंट में जिसका जिक्र किया था, सिंध की अजीम दीवार, रानी कोट किला और छांगा मांगा का जंगल। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार तारीख़ी मकामात मौजूद हैं जो देखने के काबिल रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को कैनेडियन सोसाइटी में ग्रो अप कर, हमारे बच्चे मतलब यहाँ पे हमें देखते हैं, पाकिस्तान को सुनते हैं, पाकिस्तान का नाम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की मालूमात की जो है वो थोड़ी कमी है, तो उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो चले K2 के बारे में चंद हकाइक शेयर करूँगी मैं आपके सामने और चंद मज़ेदार बातें कि K2 पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान का माउंटेन है, लेकिन दुनिया में ये सेकंड नंबर पर है माउंट एवरेस्ट के बाद। और ये कराकोरम रीजन का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, इसीलिए इसे K2 कहा जाता है। इसको 1866 में डिस्कवर किया गया था और ये कराकोरम रीजन का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है।
और ये ना सिर्फ कराकरम का बल्कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ये तकरीबन 27 समंदर से 8,611 मीटर की बुलंदी पर कायम है और एक कोहे पैमा जिसने 1953 में इसको सर करने की कोशिश की थी, जिसका नाम जॉर्ज बेल था, ये एक इटालियन कोहे पैमा था। इसने इस K2 को जो है डेडलिएस्ट माउंटेन के नाम से मतलब उसको डेडलिएस्ट माउंटेन का खिताब दिया है। वो अपनी किताब में ये लिखता है कि जैसे जैसे आप इस माउंटेन को सर करने जाते हैं, ऐसा लगता है कि माउंटेन आपकी कभी भी जान ले लेगा। तो इसके जो बहुत सारे निक नेम हैं, ना सिर्फ इस जॉर्ज बेल ने बल्कि जितने भी कोहे पैमा हैं जिन्होंने इसको सर करने की कोशिश की है, वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक माउंटेन है और ये जो है एक तरीके से जो है मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे आबो हवा के लिहाज से भी इसका जो रीजन है, इसका जो लंबाई है वो इतनी ख़तरनाक है। इसमें चढ़ने के लिए जो सहूलतें हैं, अगर आपके पास प्रॉपर ना हो तो आपका जो मतलब अगर आप वहाँ पे सही से तैयारी के साथ नहीं जा रहे तो ये जो है आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ के मुताबिक या हिस्ट्री के मुताबिक हर साल 4 में से एक कोहे पैमा जो है K2 को सर करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठता है और इसलिए इस K2 को डेडलिएस्ट माउंटेन कहा जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे निकनेम हैं, जैसे कि किंग ऑफ माउंटेन भी इसे कहते हैं और माउंटेन ऑफ माउंटेन भी कहते हैं। तो ये माउंटेन दुनिया के 5 ऐसे माउंटेन में शुमार किया जाता है जो कि ख़तरनाक ही मतलब मतलब डेडलिएस्ट हैं और बहुत ही ख़तरनाक हैं और जानलेवा साबित होते हैं वो माउंटेनियर्स के लिए। इसको सर करने की कोशिश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 में से 1 लोग जो है वो यकीनन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो K2 की जो ये जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा K2 के बारे में बहुत सारे मालूमात हमारे सोशल मीडिया पे हमारे मतलब हिस्ट्री की किताबों में मिलेगी और इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं जो माउंटेनर्स हैं वो K2 में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इसके बारे में लिखते रहते हैं। बहुत सारे जो इटालियन जर्मन माउंटेनर्स हैं उनकी बुक्स में भी K2 का जो जिक्र है वो सर फहरिस्त है। तो K2 पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है और हमें भी चाहिए कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने ऐसे कीमती असासे को एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि हम दुनिया को बताएं कि ये हमारे लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम आपसे फिर इसी किस्म की दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.
आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे। और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने, प्रेजेंटेड बाय सिनेड्रीम्स मीडिया कंपनी। आज हमने जी भर के पाकिस्तानी टीम को बुरा कह दिया। क्या इंटेंस वाला सिचुएशन थी यार। थोड़ी गिल्टी फीलिंग हो रही है। गिल्टी फीलिंग हो रही है ना। गिल्टी फीलिंग हो रही है। हम यार बचपन से असल में हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते आए हैं और पाकिस्तान ने हमेशा हमें they always put us through these grueling tests. Being a tests. Pakistani fan is a very tough job. बल्कि आज मैं पढ़ रहा था, किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने मीम बनाई थी कि जन्नत में जब रोज़े क़यामत हम जाएंगे तो हम कहेंगे अल्लाह मियां हम पाकिस्तानी फ़ैन थे, so we've already been through a lot, we've been through hell in the world, तो प्लीज़ हमें आप जन्नत में दाखिल होने दीजिए। You know, I heard that, if you've got bimariyan, if you got sicknesses, you get all those things washed, right here in this world. Yeah. But if you're a Pakistani fan, that's a straight one-way ticket to heaven, man. हाँ, वो तो मेरा मरते ही सीधे वहीं। हाँ। That's why we're as they call it, die-hard fans. We're gonna die, but hard. Hard. Although I don't know, that's in a different context, but it's a family show. हाँ, लेकिन before we move on to our next segment, हमने आज फैसला किया कि हम सिर्फ लोगों की बुराइयां करेंगे। हाँ, इसमें मजा आता है यार। I just want to ask you a really simple question. And in our next show next week, we will be doing a full analysis on the next round of the cricket tournament, the top 8. और हम सबसे अपने पैनल वालों से पूछेंगे कि कौन जीतेगा। लेकिन if I ask you one question right now, who is going to win the World Cup? Don't even tell me who they're going to be competing. Just pick the team that you think is going to win the cup. Australia. South Africa. Amazingly enough, South Africa is winning this cup. They've always had a tendency to really like when they get करेंगे इस बार भी करेंगे, लेकिन बस वो होगा कि वो आखिरी हिचकी जो होती है ना, वो that'll get them across the line. वो जो भी फंसा हुआ होगा अंदर से वो निकल जाएगा। वो चोक होके finishing line cross कर लेगा। But that's a big claim to make. That's a huge claim to make. I'm just playing it very easy. When I heard that, I was like, what the hell is he saying? लेकिन मैं एयर पे कह रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीता ना, I know you're very confident and you should be, given their track record. अगर ऑस्ट्रेलिया, आपको मैं $10 दूंगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यानी कि $3 दोगे तो मुझे अगर ऑस्ट्रेलिया ये टूर्नामेंट जीता। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया of all teams is not winning this cup. Wow. Are they going to be are they in the final? नहीं, not even the semis, but I'll give you my full analysis next week inshallah. इस वक्त हमारा अगला क्या कहते हैं सेगमेंट फ्रस्ट्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन, हमारा जो बुखार है वो अब उतरने वाला है। बिल की भड़ास जो है ना वो निकालने वाले हैं हम अभी। हमारे प्यारे
प्रधानमंत्री कहते हैं हाँ, प्रधानमंत्री हजरत जस्टिन ट्रूडो अलैहिस्सलाम ओह अस्तगफुरुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु Justin Trudeau was supposed to be our guest tonight, yeah, but apparently while he was on his way here from Ottawa, he forgot something. तो हम जो पहला क्लिप आपको दिखाने वाले हैं, that'll show you what happened when he was on his way to our studio. Unbelievable. Please पहला क्लिप प्ले कीजिए आप It's लोग. not even embarrassing. It's Just before we get to questions, I'm supposed to model healthy behavior. I'm going to go grab my coat and I'll be right back. It's nice and sunny, but a little brisk. A little cold. So he forgets his coat. yeah. अच्छा वो जैसे कि आपने देखा उनका कोट जो उनके घर में रह गया था उनका कोट जो है ये क्या जानबूझ के ये हुआ है ये सब या घर में रह गया था हाँ घर में रह गया था ये भी मुझे पीसीबी की चाल लग रही है मुझे ये जो भी होगा ना इस दुनिया में whatever is happening in this world PCB is involved एक जमाना था कि we used to blame अमेरिका for everything कि ये जो भी गलत हो रहा है अमेरिका की वजह से हो रहा है from now on it's PCB It's the new अमेरिका वैसे PCB जो है वो है ही अमेरिकन वो तो खैर सिर्फ पी जो है उसका वो भी अमेरिकन ही है हाँ P American P ना C ना B the P No but did you get what I said Abdullah? It was very weighty it was very heavy very heavy Pakistan Cricket Board is American and I added to that because P, which is Pakistan is if we both Abdullah we both know that USA beat Pakistan and I'm wondering you know in order for Pakistan to be I mean USA to be happy Pakistan has to listen to everything that they have to do yes it's the IMF you know money getting from different countries so you got to lose to US you got to my बाप से lose करना पड़ता है भाई गधे को भी बात बना लो चले बहरहाल हम पीसीबी पे बहुत कर लिया भाई आप हाँ सॉरी आज अपना ही सॉरी कितना अपना डायरिया करेंगे आप उसमें वर्बल डायरियाज इतना भी 10 नहीं होने चाहिए कुछ ग्रैबॉल लेनी चाहिए इमोडियम वी नीड सम इमोडियम राइट नाउ हाँ बहरहाल ट्रूडो साहब फिर यहाँ पहुंच नहीं सके तो हमने उनसे टेलीफोन पे राब्ता किया अच्छा and one of our first questions to him was about the you know because it's the month of June very happy month we're all very proud of it सब खुश हैं सब फखर कर रहे हैं इस जून के महीने पे अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है सब खुश हैं बहुत ज्यादा खुश हैं वैसे बहुत ज्यादा खुश हैं खुशी है खुशी इस पे मुझे एक जोक याद आ गया कि किसी ने मुझसे कहा कि भाई this is nothing to do with Trudeau because this won't apply to him maybe or might कि एक अच्छी लड़की और एक बहुत अच्छी लड़की में क्या फर्क है अच्छी लड़की okay. एक अच्छी लड़की आपको खुशी देती है और एक बहुत अच्छी लड़की आपको खुशी देती है मतलब डबल खुशी देती है अच्छा डबल खुशी हाँ anyways we asked Trudeau his opinion on the ongoing debate about the you know the Pride month and the people involved in this month और ये क्लिप देखिए आप उनसे बेचारों से वो लफ्ज़ कहा ही नहीं जा रहा था I will never apologize for standing up for an LGBTQ2+ kids' rights to not have to undergo conversion therapy. ये इसको मुझे लग रहा है कि इसको बाइडेन वाला वो बाइडेन वाली बीमारी होगी उसे he can't speak ये उससे भी खतरनाक बीमारी है जब आप इतनी सपोर्ट करेंगे तो वाकई बीमारियां तो लगती हैं ओह हाँ इसकी ज़बान को एड्स हो गई इतनी भी क्या लड़खड़ाहट थी भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी नहीं भाई क्यों Why so much hesitation? क्यों सवाल भारी था अबे मुनाफिक अंदर से कुछ बाहर से कुछ और हैं जस्टिन LGBTQABCDXYZ I love you you love me मेरा सवाल सिर्फ ये है कि LGBT क्यों क्यों और Q+ क्यों LGBT क्यों और ये 2+ क्या है
यार ये 2+ मत पूछो यार, ये मुझे वो इतनी मैथ्स तो मुझे भी नहीं आती। ये एक दूसरे किस्म का एक कैलकुलस है ये। हाँ, बहरहाल उसके बाद हम ट्रूडो से कुछ सवाल पूछने लगे कि जब आप वो कैबिनेट में होते हैं तो अक्सर जो है भूख लग जाती है। तो उन्होंने कैबिनेट के दौरान ही अपने भूख को मिटाना शुरू कर वो मैंने, ओह माय गॉड। तो दर्शकों प्लीज नाजरीन हैव अ लुक। इट्स अनबिलीवेबल। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। Rising on a point of order. Mr. Speaker, we all know that the rules of the House do not permit us to eat in this place. And I can't help but observing that during the last vote, a number of people were eating in their seats, including the Minister of Defense, the Minister of Canadian Heritage, and the Prime Minister, who appeared to be hiding a bagel in his desk. Mr. Speaker, the Prime Minister has already stained this place with corruption. He does not need to stain it with mustard as well. Exactly. Same point of order. Order. Indeed, Mr. Speaker, I apologize. It was a chocolate bar, but I apologize. Thank you, Mr. Speaker. Thank the honourable member for Lanark, Frontenac, Kingston. And I remind members that food is not permitted in the chamber. तो बेगल नहीं था, नहीं चॉकलेट बार था ये। चॉकलेट बार था तो क्यों, मतलब लोग क्यों इतना अपसेट हो गए थे कि अगर देखो अगर बेगल होता ना, अगर बेगल होता तो समझ लेते हम, मतलब कि भाई हाँ तो वाकई उसको तो सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए उसको, सजाए मौत होनी चाहिए उसे, मतलब should be hung। बेगल नहीं था, but it was chocolate। चॉकलेट यार, it's a sign of love, not just that, affection। cocoa baby, cocoa। जून का महीना है भाई, किसी ने दी होगी उसको। हाँ, somebody very happy। किसने दी होगी कि भाई इसको हाँ पैक करो अपने अंदर मुंह में, ये डालो अपने मुंह में, ये फज जो है, ये फज फ्लेवर्ड चॉकलेट डालो अपने मुंह में, ये बाउंटी डालो अपने मुंह में, पुट सम कोकोनट, मिल्की वे डालो कैरामेल। वैसे हाँ, ये पूछना चाहिए हमें अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह हम आपसे हमें पूछेंगे ट्रूडो साहब से कि कौन सी चॉकलेट थी, क्योंकि मैं बहुत I'm very curious. I'm wondering what it was, man. Because whatever he ate, he gave him a lot of. Yeah, but Abdul, he looked really happy. Yeah, भाई वो तो खैर हैप्पी तो वो रहने लगे हैं बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने। हिचकिचा रहे थे वो, शर्मा रहे थे when he was talking about L G B A B D D C D F G। हाँ, चलिए अब आखिर में एक हम मीम दिखाएंगे आपको। ये देखें, you know when you're in the limelight, people will target you. Even if you don't do anything wrong, they will find ways to make it look like you're doing things wrong. Is that right? एक तो ज़ाहिर है ये AI का मसला आ गया है। हाँ। आजकल तो हमें पता भी नहीं होता कि हम जिसको देख रहे हैं कि वो असल है कि नहीं, या वो नकली है। ये on a side note अब्दुल्ला, ये एक दज्जालिक सिस्टम बन चुका है। ये तो एक पूरा अलग टॉपिक है जिस पे हम पूरी सीरीज करेंगे। we're gonna do a series on that. पूरी सीरीज करेंगे, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने बेचारे हमारे शरीफ से प्राइम मिनिस्टर को जो कोर्ट घर में भूल आता है या चॉकलेट खाने लगता है या LGBT, मतलब उसको समझ नहीं आता, उसे उसका मुंह लड़खड़ा जाता है, इसको एड्स हो जाती है उसके मुंह में। बहरहाल उसके साथ ये बड़ी ज्यादती की है। आप देखिए जरा कि क्या तमाशा क्या किया इन बच्चों ने इसके साथ। Unfortunately, in Canada, our volunteering as a charitable religious organization is extremely difficult. Extremely. That's why, in actuality, we cannot do free volunteering to help our neighbors in need as we truly desire. So that's why we came here today to ask you to also look into the policies that religious charitable organizations have in our legislation so that it can also be changed, because maternal love is the love that's going to change the future of mankind. So we'd like you to look into we like to say people kind, not necessarily mankind, because it's more inclusive. There we go, exactly. Yes, thank you. We can all learn from each other. Hello. I am Justin Trudeau. I am terrible shitty Prime Minister. I am full of disinformation and misinformation and of lies. I am what is wrong
with. Canada, I will destroy Canada. I am Justin Trudeau, and I am evil piece of shit. Prime Minister, and share this video. Follow up me on Twitter. Thank you all. I am a lying piece of chocolate. Milky Way. Milky Way. ये भी यार हद हो गई वैसे मजाक उड़ाने की यार ये. नहीं लेकिन जो भी हैं साले बहुत क्रिएटिव हैं यार ये. Oh, that was very creative. By the way. Yeah, मजा आ जाता है यार. That's why we get fascinated by everything that we see here, man, on the phone now. It's like wow, that was amazing. Lekin bichara, you know, he gets caught up in the wrong situations. He says the wrong things, and sometimes where he doesn't say enough. Abdullah, look, you look at a guy like Imran Khan. There's 230 million people in the country, and they are willing to go through a wall for this guy, which they actually don't. They don't even come out of their homes to do any kind of protest. वॉल के थ्रू जाना तो जेल की दीवार तोड़ते हैं. जेल की दीवार को तोड़ के मतलब यहाँ बिल्कुल सही. सलाखें यूं करके. ये मैं गलत कह रहा हूँ यार, लेकिन I mean, they love him though. They love him and they respect him. They love him. Why? Because he doesn't bullshit. He just says whatever is on his mind and what's in his heart. Yeah. So, you know, Trudeau, Justin, if you tried that, then maybe this kind of stuff wouldn't be happening. Yeah, we should make something like this for अपना इमरान खान. We should. We will. आप लोगों के लिए चैलेंज है कि इससे अच्छी रील आप बना के मीम बनाएं. Memes. Mimi. Anyways, I think we've roasted a lot of. We have. And we've barbecued and. We certainly have. Prime Minister, our country, our countrymen. Our sportsmen as well. Our sports organizations. Our people. कुछ बचा है रोस्ट करने के लिए? यार, it's a nuclear attack. बस अब जो पीछे वो चिकन रोस्ट हो रही है हम वो खाने जाएंगे. हाँ वो यार क्या खुशबू आ रही है यार, लेकिन इसमें वो बहुत लगा हुआ है, शान मसाला बहुत लगा हुआ है. शान मसाला. शान वाले हमेशा खुश रहें. हम उनकी फ्री प्रमोशन कर रहे हैं आज. जितने भी मसाले आपके हैं वो हर घर में मौजूद हैं. घर. Anyways, on this note, I think we will take a bid farewell from you. Until next week. Next week आप देखना मत भूलिएगा, एक स्पेशल शो आ रहा है आप लोगों के लिए. An exclusive on the T20 World Cricket or World Cup or Cricket Cup. Cricket World Cup. I am stemming just right like now. Trudeau. LGQP ABCD. Cricket show will be aired next week for you. Something like this. देखना मत भूलिएगा. बिल्कुल हाजिर होंगे और बहुत बातें करेंगे. बहुत ज्यादा बातें करेंगे. बहुत बातें करेंगे. बहुत ही फजूल किस्म की बातें करेंगे और आपको एंटरटेन करेंगे. आपको अंडरटेन करेंगे. एंटरटेन कर देंगे हम. बहुत बातें करेंगे. अंडरवेयर पहन के. वैसे अंडरवेयर पहन के. We'll be back next week. I don't know if we're going to do that. Keep watching our show. Please, because I don't know if you want to after that. Thank you for watching us tonight.